आपका नाम क्या है? आई एम द डॉक्टर मनोज कुमार फ्रॉम दिस साइड। आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है आपको? आई एम डॉक्टर मनोज कुमार। हाँ, आई एम डॉक्टर मनोज कुमार फ्रॉम दिस साइड। व्हाट इज योर गुड नेम? सर शहजाद। शहजाद, वेरी गुड। एंड योर रोल नंबर? सर आई डोंट नो अबाउट द रोल नंबर, क्योंकि मैं कभी कॉलेज गया नहीं, सिर्फ एडमिशन लेकर आ गया था। ओके ओके, वेरी गुड। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ टुडे इज द फर्स्ट क्लास। जी सर। I have already sent the lecture on the WhatsApp group. यस सर, यस सर। I have already sent the uh, lecture notes of the quality management and the research methodology. The two subjects are with me. जी And जी सर। so let's start the lecture then. हाँ श्योर सर। Yeah. So at first we will go for the quality, dimensions of the quality and evolution of the quality. जी। Liberalization and globalization, with the opening of the economic multinational company the world over, are setting up the organizations in India. And also Indian government has liberalized many products that are previously manufactured by the public sector and the government organization are now being manufactured by the private organizations. The opening of the economy has brought to the advantage of the customers many benefits. Opening of the economy to the multinational company gives the many benefit to the customers. Sellers market to the buyers market. Previously, customer had to depend on only a few products. They are now able to choose whatever the product they want. This is the advantage of the customers. So organizations have to be agile and introduce many variants of the same product and too many in a very short period of the time. Number second is the awareness. Number second is the awareness. With the connectivity increasing, the world has become very small, and even remote places are now connected through the internet and the mobile phones, and not mention the connectivity through the read and roll. Hence, the customers became aware through the internet and the mobile phone. Increased competitions. More and more organizations are setting up industry in India to produce the product and services. Also, any product produced anywhere in the world can be sold in any part of the world. This is the role of the liberalization and the globalization. Indian companies have come under a lot of the pressure under the present circumstances, become freedom to produce. Many products that were under the domain of the cottage industry are now being manufactured by the multinational company. Chips, soft drinks, these are the some of the examples which are product by the multinational company. Organizational system and the culture. The multinational companies that enter the Indian market bring with them proven system through which they have a great advantage over many of the Indian organizations that still need to think in terms of the progressive system. Hence, when the multinational organizations enter in the Indian market, these are the advantage to the customers. In view of the above circumstances, organization in India need to look ahead to the competitive to the survive and succeed. One of the best way of the taking the first step forward is to improve productivity. Improvement of the productivity is the boon for the industry. They have to be work at the optimum level, improve the productivity of the labor, improve the productivity of the plant, improve the productivity of the machine, improve the productivity of department and the whole organizations. This is the improvement of the productivity inside the organization, and in the delivery process, they need to respond faster to the environmental requirement and produce products and services at continuously reduced cost. If you improve the productivity, then the cost will be reduced, the services will be get reduced. This is the advantage. Secondly, organization needs to
process information and products at the faster rate. Products will be delivered to the customers at the faster rate. For these happen in such organization need to be provided with updated, timely and strategic information. If we provided with the updated, Okay. timely and strategic information, all departments in the organization need to work in the unison to serve the multiple customer, need to serve the unison as a multiple customers. Customer is the king in the present age. Customer is supported to be the king as the agile manufacturing concept which will come in the recent days, that is dependent upon the customer perception. What the customers want, what the customers of the Singapore want, what the customers of the China want, and they produce the item according to the customer's demand and change their manufacturing system according to the customer's demand, customers adaptability, हाउ द कस्टमर से कस्टमर किस तरह का चाह रहा है आइटम, उसी तरह का आइटम वो बनाती है और वही आइटम जो है आप जो है चेंज कर देती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को चेंज कर देती है। जैसे फोर्ड है, फोर्ड जो है कई मॉडल उसके फोर्ड के आते हैं, सिंगापुर में फोर्ड का कोई दूसरा मॉडल चलता है, बीजिंग में कोई और मॉडल चलता है, दिल्ली में कोई और मॉडल चलता है, बम्बई में कोई और मॉडल चाहता है। जो मॉडल कस्टमर चाह रहा है उसी मॉडल का तुरंत जो है एजाइल सिस्टम बना करके फोर्ड कंपनी अपना जो है मॉडल निकालती है। तो we can say demand and commodity are correlated. हाँ, कस्टमर जैसा चाहता है वो उसी के अकॉर्डिंग वो आपको, जहां पर कस्टमर का प्रेफरेंस सबका अलग अलग है, कस्टमर चॉइसेस का अलग अलग है सभी रीजन भाई, तो जिस तरह का कस्टमर चाहता है उसी तरह का वो जो है मॉडल बना करके वो आपको कस्टमर को देता है। प्रोडक्ट कॉस्ट हैव टू बी कंटिन्यूअसली डिक्रीज। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है आपको कंटिन्यूअसली जो है डिक्रीज कर रहा है। ऑल थिंग्स शुड हैपन इन ए सिचुएशन in which the employee salary, interest on loans, insurance cost, electricity charges, to name a few, keep on increasing as expense to the organization, है ना। जबकि प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है आपको डिक्रीज करता है, जबकि लोन जो है आप कोई ऑर्गेनाइजेशन लेती है वो आपको इंक्रीज कर जाता है, एम्प्लॉय का सैलरी वो इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज वो इंक्रीज कर जाता है। दीज आर द थिंग एक्सपेंसेस गोइंग टू बी द इंक्रीज, हेंस द बैलेंस इज नीडेड to manage the cost between them, है ना। तो for this purpose quality is proved to be a boon and tool for the any of the organization. Quality has been the most exploited word but at the same time most misunderstood word. Quality is an offshoot of the work we do. It is a byproduct of an act. It shows the level of commitment in doing our activity. Examples such as high quality at the low price. These are the examples of the some of the byproduct of their quality. Hawaii chappal, high class quality, etc. are being mentioned in the product. Definition. Quality is defined in the many way. The definition of the quality का जो definition है वो कई तरह से आपको दिया जा रहा है. Means quality is an excellence. Quality is a value. Sir, quality depends on the customer requirements and price. हाँ, customer requirements and price, right. Quality is conformance to the requirement. वही चीज आप भी वही कह रहे हैं कि भाई कौन सी requirement कहाँ पर फिट हो रही है, तो ये this is a conformance to the requirement. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गियर का एग्जाम्पल लेता हूँ, जो तो शुगर केन के लिए जो आपको क्रशिंग करने के लिए जो मशीन आती है उसमें जो गियर लगेगा वो रफ रहता है। लेथ में जो गियर लगेगा वो रफ रहेगा। वॉचेज में जो गियर लगेगा वो आपको ज्यादा स्मूथ रहेगा। तो जो गियर है आपको वही गियर आपको सीएनसी मशीन में लगेगा, तो वहां पे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। तो क्वालिटी इज कन्फर्म अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है और उसको फुलफिल करना चाहिए, उसको क्वालिटी बोलते हैं। तो क्वालिटी इज एन एक्सेलेंस। When quality is defined and excellence, its losses is measurability. Each person understands to the level of his own excellence and involves in his work. It is often understood that the high cost is the high quality. This is the
Rolex watches, BMW automobiles having the high quality means the high cost is the high quality. Quality is the value. With this definition, the performance and feature of the usefulness of the products are compared to only the cost of the price of the product. Many a times, the utility possession value is more than the value of the product. The features of the products are compared to the cost of the product. Okay. Quality is conformance to the requirement. जैसे मैंने आपको गियर का Okay. एग्जांपल लिया, this definition has a manufacturing orientation. It requires that the customer give the specification and the products are manufactured to that requirement. Okay. Quality is a degree to which the inherent capability of the product satisfy implicit and explicit requirement, customer driven. This is the definition of the quality. Quality is the degree to which the inherent capability of the product satisfy requirement. Mm-hmm. This is the quality. Why the need of the quality? Good quality of the goods and services can provide an organization with the competitive edge. This is the first advantage of why we go for the quality. Good quality reduces cost due to the product returns and rework and scrape. Good quality जो अगर आप बनाएंगे तो आपको प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा, रीवर्क नहीं होगा, स्क्रैप नहीं होगा. ये इससे आपको फायदा है. आपका कॉस्ट जो है आपका कंपनी में पर आइटम आपको रिड्यूस हुआ है. अगर रिटर्न होने लग गया, प्रोडक्ट रिटर्न हो गया. कई बार ऐसा हुआ है. टाटा ऑटोमोबाइल बनाती है. पहले उन्होंने एक गाड़ी लॉन्च किया था, वो उन्होंने साउथ अफ्रीका भेजा, वो गाड़ी वहां से रिटर्न आ गई, उसमें फॉल्ट हो गया. तो वो रिटर्न होने के बाद जो है वो टाटा उसको रिकवर करने के लिए 1 साल का उसको टाइम लग गया. तो उससे उसको काफी जो है लॉस होता है. रिवर्क करने के लिए, स्क्रैप के लिए उसको काफी लॉस होता है ना. तो इसीलिए क्वालिटी की जरूरत होती है. गुड क्वालिटी इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी. अगर अच्छा क्वालिटी का आइटम बढ़ता है तो वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है, प्रॉफिट्स भी बढ़ाती है, एंड अदर मेजर्स ऑफ द सक्सेस सच एज ए ब्रांड इमेज वो आपको करती है, मार्केट में प्रोडक्ट इमेज करती है और कंपनी का गुडविल बिठाती है मार्केट में. दिस मींस द गुड क्वालिटी. अगर कोई भी आइटम है तो आपको ब्रांड इमेज करेगा, वो प्रोडक्ट इमेज करेगा, कंपनी का गुडविल बनाएगा मार्केट के अंदर में. ये उसका जो नीड फॉर द क्वालिटी है. ये आपको सबसे ज्यादा कंपनी का गुडविल बनाने के लिए, प्रोडक्ट का इमेज बनाने के लिए, ब्रांड इमेज बनाने के लिए आपको क्वालिटी आपको चाहिए ही चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुड क्वालिटी जनरेट्स सेटिस्फाइड कस्टमर टुडे. ठीक है, तो भाई साहब मैंने बोल दिया देखो तुम है ना. जो अच्छी क्वालिटी होता है वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करता है, वो टुडे को सेटिस्फाइड करता है, टुमारो भी सप्लाईज करता है. तो इससे कस्टमर आपका जो है अच्छी क्वालिटी का आइटम रहता है तो अच्छे दिन तक चलता है, तो उससे आपको सेटिस्फाइड रहता है. गुड क्वालिटी क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर फॉर हाई एम्प्लॉय मोरल. गुड क्वालिटी का आइटम रहता है तो एम्प्लॉय का जो मोरल है वो आपको हाई हो जाता है. विच इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, जो कि आपको प्रोडक्टिविटी को आपको बढ़ाता है. दिस इज द नीड फॉर द क्वालिटी. ये आपको एम्प्लॉय का मोरल को भी जो है आपको बढ़ाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द इवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी. क्वालिटी का इवोल्यूशन यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है. क्वालिटी एक्सपीरियंस इफोर्ट दिखाया हुआ है, सिस्टम फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटी दिखाया हुआ है. तो ये आपको 1960 में क्वालिटी कंट्रोल की बात होती थी. उस वक्त स्टैटिक्स से आपको वर्कमैनशिप का, प्रोडक्ट टेस्टिंग का आपको कंप्लेन करके क्वालिटी कंट्रोल चार्ट, फेल्यूर रेट निकाला जाता था, उसकी बात होती थी. 1960 में 70 में क्वालिटी एश्योरेंस की बात होने लग गई. क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम आ गया, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन आ गया, क्वालिफिकेशन आ गया, R&D फैक्ट्री आ गया, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड आ गया, ISO आ गया, MIL आ गया, ये सारे आ गए 1980 में. हाँ, ये आपको इवोल्यूशन दिखा रहा है कि कैसे कैसे जो है आपको क्वालिटी में आपको इवोल्यूशन आया. 1980 में क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया. क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस के मैनुअल आ गए, प्रोसेस मैनुअल आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, क्वालिटी एश्योरेंस एवरीबॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड आ गया, ISO 9000 आ गया, 14000 आ गया. ये आपको 1980 में आ गया. 1990 के बाद आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये वर्ड आपको इसमें आ गया. इसमें फेल्यूर रेट,
डीपीएम में मेजर करने लग गया, सिक्स सिग्मा आ गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आ गया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ गया, पीपुल एंड चेंज मैनेजमेंट आ गया, प्रोसेस इंप्रूवमेंट आ गया, इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी आ गया, कई तरह के क्वालिटी अवार्ड्स आ गए। तो ये आपको इवोल्यूशन कैसे क्वालिटी का हुआ उसमें ये बता रहा है। Before the concept and idea of the TQM were formalized, much work had taken place over the century to reach this stage. This section charts the evolution Sir, from ये डायग्राम inspection. ड्रॉ करना पड़ेगा हमें इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी? हाँ, तो अगर इवोल्यूशन पूछता है तो उसमें तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, इवोल्यूशन अगर पूछेगा, इवोल्यूशन में तो आपको जो आपको ईयर वाइज कैसे ग्रोथ हुआ है इवोल्यूशन पूछ रहा है, तो उसका मतलब है वो हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। तो प्रेजेंट डे कैसे हुआ उसके बारे में वो आपको आपको देगा। देन फ्रॉम इंस्पेक्शन टू द टोटल क्वालिटी, पहले आपको इंस्पेक्शन होता था, पहले क्वालिटी की बात नहीं होती थी। पहले जब शुरू हुआ था, इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स मेजरिंग, एग्जामिनिंग एंड टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, process and services against a specified requirement to determine the conformity. पहले इंस्पेक्शन की बात होती थी। In the late Middle Ages, special measures were taken to inspect the work of the apprentice and journeyman in order to guard the good against the claims of the makeshift or the shoddy work. During the early years of the manufacturing, inspection was used to decide whether a worker's job or a product meet the requirement. Therefore acceptable. It was not done in the systematic way, but worked well when the volume of the production was reasonably low. However, as organization become larger, the need for more effective operations become apparent. In 1911, Frederick W. Taylor helped to satisfy this need. He published the Principles of the Scientific Management, which provided a framework for the effective use of the people in industrial organization. One of Taylor's concept was clearly defined task performed under the standard condition. Inspection was one of these tasks, and it was intended to ensure that no faulty product left the factory or the workshop. पहले इंस्पेक्शन हुआ करता था। तो FW टेलर आपको प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये आपको बताया कि इंस्पेक्शन ऑफ द वन ऑफ द टास्क फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट एंड द डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इन द प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड, involves testing every time to ensure that it complies with the product specification, is carried out at the end of the production process and rely on the specially trained inspector. पहले इंस्पेक्टर हुआ करता था, वो प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हुआ, प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको प्रोडक्ट का जो है वो जो है चेकिंग कर देता था, जो फॉल्टी प्रोडक्ट है वो उसको बता देता था। दिस इज द टाइम ऑफ द इंस्पेक्शन. Accompanying the creation of the inspection function, the other problems arose. इंस्पेक्शन तो होता था, लेकिन उसके जो प्रॉब्लम जो आपको एरोज हुए, ये सारे प्रॉब्लम हुए. More technical problems occurred, requiring specialized skills of not processed by the production workers. क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ उसमें स्पेशलाइज्ड स्किल जो है वो जो है प्रोडक्शन वर्कर को वो नहीं होता था. The inspector lacked training. इंस्पेक्टर को जो है ट्रेनिंग नहीं होता था. इंस्पेक्टर वेयर ऑर्डर टू एक्सेप्ट डिफेक्टिव गुड्स टू इंक्रीज द आउटपुट. इंस्पेक्टर को कहा जाता था कि भाई आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट को ले लीजिए, आपका हमारा इनपुट जो है आउटपुट जो है इंक्रीज कर जाएगा. तो ये सारी प्रॉब्लम आने लग गई इंस्पेक्शन में. स्किल्ड वर्कर्स आर प्रमोटेड इनटू अदर रोल्स, लीविंग लेस स्किल्ड वर्कर टू परफॉर्म द ऑपरेशनल जॉब्स सच एज ए मैन्युफैक्चरिंग. स्किल्ड वर्कर को दूसरे जगह देने लग गया. तो ये आपको इंस्पेक्शन से आपको प्रॉब्लम आने लगी. दिस मूवमेंट लीड टू द इमरजेंस ऑफ द सेपरेट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट. एन इंपॉर्टेंट न्यू आइडिया दैट इमर्ज फ्रॉम द न्यू डिपार्टमेंट वाज डिफेक्ट प्रिवेंशन व्हिच लीड टू द क्वालिटी कंट्रोल. उसके बाद जो है क्वालिटी कंट्रोल का जन्म हुआ. देन गो टू द क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरी. पूरा एक क्वालिटी कंट्रोल का एक पूरा मैनेजमेंट तैयार हुआ उसके बाद. हाँ, उसके बाद पहले इंस्पेक्शन होता था, इंस्पेक्शन में ये सारी प्रॉब्लम आने लग गई. तो 1920 में डॉक्टर डब्ल्यू स्वाट ने ये क्वालिटी कंट्रोल आपको स्टैटिस्टिकल थ्योरी पे डेवलप किया. जो डिफरेंट कंट्रोल चार्ट हैं, एक्स चार्ट,
मीन चार्ट, आर चार्ट, सी चार्ट, पी चार्ट, ये आपको सेवाट कंट्रोल का दिया हुआ है। सेवाट कंट्रोल की उसका बुक पढ़िए, उसमें कंट्रोल चार्ट जो है बहुत अच्छा से आपको दिया हुआ है। कई बुक सेवाट कंट्रोल की मेरे पास भी पड़ी हुई है, उसमें कैसे कंट्रोल चार्ट को बनाया गया जाता है वो पूरा उसमें डिटेल से आपको दिया हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डिटेक्ट एंड फिक्स प्रॉब्लम्स along the production line to prevent the production of the faulty products. ये आपको प्रॉब्लम को ये फिक्स करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल का हेल्प लेने लग गया। स्टैटिस्टिकल थ्योरी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एरिया। स्टैटिस्टिकल जो थ्योरी है जिसको सेवाट कंट्रोल ने यूज किया वो आपको काफी जो है हेल्पफुल रहा आपको उसको बनाने में। He made the first modern control chart and demonstrated that the variation in the production process lead to variation in the product. Therefore, eliminating variation in the process lead to a good standard of the end product. Seward control, W. Seward was the first man to introduce the control chart, और उससे जो वेरिएशन है वो पता चल जाता है। क्वालिटी कंट्रोल चार्ट का इतना ब्यूटीफुल है कि आप कंट्रोल चार्ट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर डे वाइज कंट्रोल चार्ट बनाते हैं पूरे मंथ का तो किस दिन आपको वेरिएशन आया है प्रोडक्ट में वो पता चल जाएगा। अगर आपके पास 15 लेबर है तो किस लेबर ने फॉल्टी प्रोडक्ट बनाया है वो आपको पता चल जाता है। तो कंट्रोल चार्ट एक जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है आपको क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। अगर प्रॉपर ढंग से क्वालिटी कंट्रोल चार्ट बनाया जाए तो आपको पूरा आपको पता चल जाएगा। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल focuses on the product and distraction of the control of the quality problems. It involves testing samples and statically infers compliance of the all products. It is carried out at stages through the production process and relies on the trained production personnel and quality control professionals. Sewart's work was developed by the Deming. सेवाट का ही काम को बाद में डेमिंग ने, एडवर्ड डेमिंग जो आपको वर्ल्ड गुरु माना जाता है क्वालिटी में, उसने डेवलप किया। डोज एंड रेमिंग ने उसने भी डेवलप किया। हाउएवर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिड नॉट फुली यूटिलाइज दिस टेक्निक्स अंटिल द लेट 1940 में तक जो है कंपनियां इसको फिर यूज करना शुरू कर दी। देन क्वालिटी इन द जापान। In 1940, Japanese products were perceived at the cheap and shoddy imitations. जापान की जो आइटम्स थी वो मार्केट में चीप आने लग गई और वो एक जो है कस्टमर को परसीव करने लगी। Japanese industrial leaders recognized this problem and aimed to produce innovative, high quality products. जापानीज लीडर्स ने इसको, अभी भी जापान के ही आप यूरोप में चले आइए, स्पेन में, वो अपना माल बनाते तो जरूर है लेकिन वो खरीदते हैं जापान का। जापान का आइटम जो है क्वालिटी में नंबर 1 है थ्रू आउट द वर्ल्ड। दे इनवाइटेड ए फ्यू क्वालिटी ग्रुप सच एज डेमिंग, जुरान एंड द फेजिंगवे टू लर्न हाउ टू अचीव दिस एम। जापान में डेमिंग को यूएसए से बुलाया गया। डेमिंग पहले यूएसए में था, यूएसए से उसको बुलाया गया और उसको जापान में क्वालिटी को सुधारने के लिए, सारी इंडस्ट्री को सुधारने के लिए उसका हेल्प लिया गया। इन द 1950 क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डेवलप्ड क्विकली एंड बिकम ए मेन थीम ऑफ द जापानीज मैनेजमेंट। जो आपको क्वालिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो आपको क्विकली डेवलप हो गया। द आइडिया ऑफ द क्वालिटी लीड डिड नॉट स्टॉप एट द मैनेजमेंट लेवल। क्वालिटी सर्किल स्टार्टेड इन द अर्ली 60s इन द जापान। क्वालिटी सर्किल अब तो इंडिया में भी यूज होने लग गया, कई कंपनियां इंडिया में भी यूज करने लग गई क्वालिटी सर्किल को। पहले जापान में 1960 में आया था। एक क्वालिटी सर्किल इज द वॉलंटियर ग्रुप ऑफ द वर्कर्स। क्वालिटी सर्किल के काफी फायदे हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको लगाया जा सकता है। दीज आर द वॉलंटियर ग्रुप ऑफ द वर्कर्स हु मीट एंड डिस्कस इशू टू इंप्रूव एनी एस्पेक्ट ऑफ द वर्क प्लेस एंड मेक प्रेजेंटेशन टू द मैनेजमेंट विद देयर आइडिया। ये आपको क्वालिटी सर्किल है। A byproduct of the quality circle was employee motivation. Workers felt that they were involved and heard. Another byproduct was the idea of improving not only quality of the products but also every aspect of the organizational issue. This probably was the start of the idea total quality. ये जो आप जो total quality को शुरू किया, and the term total quality was used for the first time
in the paper by the Feigenbaum at the first international conference on the quality control in Tokyo in 1969. 1969 में आपको टोटल क्वालिटी का वर्ड को लाया, वहीं से पहली बार टोटल क्वालिटी के बारे में बातचीत शुरू हुई. द टर्म रिफर टू वाइडर इशू विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. 99 में आया था ना टोटल, 99 में आया था ये क्वालिटी मैनेजमेंट पे. 99 में पूरा इंप्लीमेंट हो चुका था. हाँ, टोटल क्वालिटी फर्स्ट टाइम जो है फेगविल्सन ने आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में टोक्यो में फर्स्ट टाइम यूज किया उसने वर्ड टोटल क्वालिटी. और वहां पर जो है उन्होंने इसके बारे में बताया कि कैसे जो है इसके बारे में जो है किया जा सकता है. इशिकावा also discussed total quality control in Japan, which is different from the Western idea of the total quality. According to his explanation, it means company-wide quality control that involves all employees from top management to the workers in the quality control. Total quality management in the 90s to the 1990s, a new phase of the quality control and management began. This became known as the total quality management. Having observed Japan's success of implying the quality issue, Western companies started to introduce their own quality initiative. TQM developed as a catch-all phrase for the broad spectrum of the quality focus strategy, programs and technique during this period become the center of the focus for the Western quality movement. यहाँ पे आपको शॉर्ट क्रोनोलॉजिकल आपको ऑर्डर दिया हुआ है आपको इवोल्यूशन का. In the Middle Ages, the concept of the quality is individual was installed by the long hours on the job training. The manufacturer would act as a inspector. Manufacturer ही inspector बन जाता था. The concept of the business was in the barter system. Even now we see such skilled craftsmen like carpenter, idol makers and other who make their one product and inspect it. वो खुद ही वो inspect करता था, खुद ही जो है वो प्रोडक्ट को बनाता था. In the case of the Middle Age, in the early 20th century, the work of the F.W. Taylor, known as the father of the scientific management, led to new philosophy of the separating the planning function from the execution function. During this phase, the total work was segmented into the specific work tasks for the focusing in the increased efficiency. The quality assurance of the items product produced fell into the hands of the inspector. During manufacturing, defects were present but were removed by the inspector before passing it on to the next stage or to the customer. Eventually, organization formed separate quality department to pass the material produced. Separate quality departments बना दिया कि भाई वो ही material को produce करेगा, pass करेगा. This work during that period because of the lack of the skill and education of the worker. Later on, it led to a lot of indifference to the quality among the production workers, thinking that the quality personnel were responsible for the quality goods produced. During this period, Henry Ford, जो आपको फोर्ड की जो गाड़ियां आती है जिसको कि हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन बनाया और काफी वर्ल्ड में आपकी उसकी गाड़ियां को जो है उसकी जो कंपनी में कई नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं. हेनरी फोर्ड की कंपनी में वो हमेशा नया एक्सपेरिमेंट करता रहता है और वो आपको दूसरे को पता ही नहीं चलता है कि उसके यहाँ क्या जो है चल रहा है. फोर्ड की कंपनी में असेंबली लाइन में क्या चल रहा है वो पता ही नहीं चलता है. जो फोर्ड को जनक माना जाता है, आपको क्वालिटी का आपको जनक माना जाता है, गाड़ियों का असेंबली लाइन का हेनरी फोर्ड को जनक माना जाता है. हैज आइडेंटिफाइड लॉट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द टोटल क्वालिटी एंड पुट इन द बुक कॉल्ड माय लाइफ एंड द वर्क, हेनरी फोर्ड, which people in Ford came to know later when they visited Japan to learn best practices. है ना सर? ये हेनरी फोर्ड जो है सर, ये जो हेनरी फोर्ड है ये उसका एमडी है या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट का सिर्फ एक पर्सन है? फोर्ड गाड़ियां उसी की तो है, फोर्ड कंपनी. अच्छा, फोर्ड ओके, ये हेनरी फोर्ड की है. ठीक, फोर्ड गाड़ियां जो आप मार्केट में देखते हैं ये उसी की गाड़ियां हैं, उसी की कंपनी की गाड़ियां हैं, वही हेनरी फोर्ड है. ओके.
तो उसके कंपनी में तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था ये 90s में हुआ था। हाँ हाँ 90s में इन्होंने जो है पूरा इनका असेंबली सिस्टम ही डिफरेंट है, इसी से तो ये टिक गया मार्केट में। इसका जो असेंबली लाइन है ओके। फोर्ड की गाड़ियों का, वो एजाइल बेस्ड सिस्टम है। एजाइल बेस्ड सिस्टम है, ओके वो कस्टमर प्रिफरेंस देखती है और रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, रोबोटिक असेंबली सिस्टम है, उसी के अनुसार बनाती है और फिर वो गाड़ियों को सप्लाई करती है ओके ना। ड्यूरिंग द ठीक है। 1920 in the Bell Telephone Laboratory, a team led by the Walter Seward developed the control chart, which became a popular means of the identifying quality problems in the production process and ensuring consistency of the output. सेवाट ने कई तरह के कंट्रोल चार्ट बनाए, जो Okay. कंट्रोल चार्ट उसने बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में डेवलप किया था और सक्सेसफुली पहले बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में उसने लगाया, और वही कंट्रोल चार्ट आपको मीन चार्ट है, रेंज चार्ट है, पी चार्ट है, सी चार्ट है, यू चार्ट है, ये सारे कंट्रोल चार्ट हैं, वो आपको वाल्टर सेवाट का आपको बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में वहीं पे आपको दिया हुआ है। ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर सैंपलिंग टेबल्स वेयर डेवलप्ड फॉर सैंपलिंग इंस्पेक्शन। सैंपलिंग टेबल आपको डेवलप किया गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में। During the early 40s and 50s, the shortage of the civilian goods made production a top priority. Quality was not a priority of the top manager and remained the domain of the specialist manager. Edward Deming learned statistical quality control from Seward and propagated the same to the Japanese along with the Joseph Juran. एडवर्ड डेमिंग ने जो क्वालिटी कंट्रोल चार्ट सेवाट का ही लिया और उसको जो है जापान में जोसेफ जुरान के साथ में मिलके पूरा जापानीज इंडस्ट्री में उसको लागू किया, और जापानीज नंबर 1 है अभी क्वालिटी में मैन्युफैक्चरर में। ड्यूरिंग द लेट 70s and 80s, US manager were making frequent trips to Japan to see the miracle of Japan on the quality issues. 1970s की बात है, यूएस मैनेजर जापान जाया करते थे और क्वालिटी का प्रॉब्लम वहां सीखते थे कि कैसे वहां पे आपको लगाया जाए। ड्यूरिंग द लेट 90s, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन द यूएस बिगन टू एम्फसाइज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। 1980s में suppliers and their suppliers were required to use these techniques. Genichi Taguchi introduced his concept of the parameter and tolerance design and brought the resurgence of the design of the experiment. Genichi Taguchi ने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया, Taguchi लॉस फंक्शन दिया, टॉलरेंस डिजाइन दिया, ये आपको गिनी Taguchi का आपको दिया हुआ है। The 90s में ISO 9000 became the worldwide model for the quality management system. ये सारे आपको जो है आपको कैसे कैसे आपका इवोल्यूशन हुआ, वो इवोल्यूशन का क्वालिटी में इवोल्यूशन के बारे में आपको बात करता है। दूसरा, डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी डायमेंशंस आर द परफॉर्मेंस, फीचर्स, कंफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विस, एस्थेटिक, रेपुटेशन एंड द रिस्पॉन्स। ये सारे जो है आपको डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी है। ए प्रोडक्ट्स प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑन द परफॉर्मेंस, है ना। ऑटोमोबाइल की ब्रेकिंग डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, स्टीयरिंग एंड हैंडलिंग एक्सेट्रा, ये सारे आपको परफॉर्मेंस में आता है। मोबाइल में क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, ऑडिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, ईज ऑफ यूज है कि नहीं है, ये आपको परफॉर्मेंस में आता है। ऑटोमोबाइल का स्टीरियो सिस्टम कैसा है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम कैसा है, एयर कंडीशनिंग कैसा है, ये आपको परफॉर्मेंस में आता है। मोबाइल फोन्स की MP3 ईमेल फैसिलिटी, ये सारे आपको परफॉर्मेंस में आती है, ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है, ये आपको परफॉर्मेंस है। ये सारे डायमेंशन है क्वालिटी के। रिलायबिलिटी, probability of a product surviving over a specified period of time under a specified condition, ये आपको रिलायबिलिटी है। ऑटोमोबाइल में एबल टू स्टार्ट ऑन कोल्ड डेज, गुड माइलेज, ये आपको ऑटोमोबाइल में आपको रिलायबिलिटी है। मोबाइल फोन्स में कैचे चवन, फ्यूल सिग्नल्स एंड बैटरी लाइफ इज गुड, ये इसको आपको रिलायबिलिटी में आपको ये आपको आती है ना। Conformance, the degree to which the physical and performance characteristics of a match
प्री स्टैब्लिश स्टैंडर्ड, ये आपको कन्फॉर्मेंस में आती है। ऑटोमोबाइल, नो साइंस while deriving all components fit to each other. Mobile, battery and additional cards fit well into the unit. Battery gets charged properly, ये आपको कन्फॉर्मेंस में आता है। ड्यूरेबिलिटी में, the amount of use one gets from the product before its physical deteriorates or until replacement is preferable, ये आपको ड्यूरेबिलिटी में आता है। ड्यूरेबिलिटी में क्या क्या है ऑटोमोबाइल का आपको दिया हुआ है, कोरोजन रेसिस्टेंस है, आप फॉरेस्ट्री वियर्स है, मोबाइल में बैटरी लाइफ है, स्टूडनेस ऑफ द बटन्स है, ऑटोमोबाइल में ईज विथ केबल कैन बी रिप्लेस्ड, मोबाइल में सर्विस एक्सपेंसेस है, ऑटोमोबाइल में कलर्स है, एर्गोनॉमिक सीट्स है, पैनल डिजाइन है, मोबाइल में सीकनेस है, वेट है, कलर है, ये आपको देता है। रिपुटेशन में द नेम ऑफ द सप्लायर है ना, हैज मेड ओवर टाइम, ऑटोमोबाइल का मारुति सुजुकी सर्विस है वो आपको रिपुटेशन में देता है। मोबाइल का नोकिया रिलायबिलिटी है, ऑटोमोबाइल में रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव पार्ट्स टाटा इंडिका वगैरह करती है, मोबाइल में नोकिया बैटरी रिप्लेसमेंट ये आपको करती है ना। ये था आपको डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटीज आर देयर, दी आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी, है ना। मतलब वो सारे पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए हुए हैं पूरे। हाँ, पैरामीटर को सेट किया हुआ है ना। तो आज यही क्वालिटी के सारा क्वालिटी के, हाँ क्या कह रहे हैं? एक क्वेश्चन था। हाँ, तो क्वालिटी के सारा पैरामीटर्स ऑलरेडी स्टैंडर्ड हैं जो सेट किए हुए हैं, चाहे नोकिया हो, टाटा हो, मारुति हो, फोर्ड हो या फिर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी हो, वो ऑलरेडी उसके बारे में ही सब कुछ वो सेट किया हुआ है और सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग वो सारा काम करना है क्वालिटी और मैनेजमेंट के ऊपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी मैनेजमेंट के क्वालिटी में वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है उनके यहाँ। आप उनके कंपनी में जाइएगा तो बोलेगा नहीं, डिफेक्टिव आइटम हमारा स्टैंड नहीं होगा। कारण है जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करती है। तो जापानीज और अगर इटालियंस की मैं बात करूं, जापानीज, इटालियंस और जर्मन, हाँ, तो ये भी क्वालिटी में उसके इक्विलिब्रियम ही है, उसके इक्वली है। जापान आगे है, जापान आपका क्वालिटी गुरु है और सारी फिलॉसफी वहीं से आपको, जितने भी आपके क्वालिटी गुरु हुए हैं वो सारे जापान के हैं, और क्वालिटी मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है ओरिजिनेटिंग जापान से ही है। वो जैसे आज के, अगर मैं आज की ट्रेंड की बात करूं तो लोग जर्मन्स को, इटालियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू जापानीज। अगर जापानीज की मशीन्स की मैं बात करूं तो लोग जापानीज मशीन्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मगर प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करूं तो लोग आज के टाइम में जर्मन्स और इटालियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, जो भी है, मतलब वो क्वालिटी जो है आपको, ये आपको क्वालिटी आइटम पे सारे अभी वर्ल्ड वाइड वो चल रहा है। जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो आपको प्रोडक्ट क्वालिटी पे ही आपको काम कर रहा है कि कहाँ वो। हाँ, बात है नहीं समझ में। तो आज जो आपको मैं आपको बता रहा था इवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी, ये बताया मैंने, हिस्टोरिकल पीरियोडिटी दिया, क्वालिटी का डिफिनेशन दिया, और ये लेक्चर नोट्स आपको ऑलरेडी भेजे हुए हैं, इसीलिए आपको वो देखिए था, मैं देखा था। हाँ, तो आपको कोई दिक्कत ये एक यूनिट का नोट्स है सर पूरा? नहीं, यूनिट का आपको मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ। सिलेबस मेरे पास है। यूनिट 1 में क्वालिटी है, चेन रिएक्शन है, डेमिंग का जो चेन रिएक्शन है वो है, डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी है जो मैंने आज डिस्कस किया, इवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी है वो मैंने डिस्कस किया, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी प्लानिंग है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी है, जुरांस मॉडल ऑफ द ऑप्टिमम क्वालिटी कॉस्ट। ये है आपका यूनिट 1 का सिलेबस है, आपका एमटेक लेवल का सिलेबस है। तो ये इसमें जैसे क्वालिटी चेन रिएक्शन दिया हुआ है वो आप जानते नहीं होंगे, क्वालिटी चेन रिएक्शन है। तो इसमें तो ये यूनिट 1 का सिलेबस आपका यही है। नहीं, आपने 2-3 हाँ, वो क्वालिटी 4 पीडीएफ सेंड की थी ना सर? हाँ, तो वो यूनिट 1 रिलेटेड ही है। एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा। ओके, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी 2 बजे से फिर क्लास शुरू होगी, उसका होगा, और क्वालिटी मैनेजमेंट का होगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं 2 बजे, फिर मिलते हैं। सर एक चीज और। हाँ, बताइए। हेलो।
हाँ बोलिए बोलिए। सर 2 बजे क्लास, कोई कोई क्लास तो ले नहीं रहा है, तो हम फिर थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं क्या टाइमिंग को? कैसे करेंगे? वो तो 9 बजे से टाइम टेबल बनाया हुआ है। सर कोई क्लास, मैं अकेला ही हूँ क्लास लेने वाला। नहीं तो वो आ जाएंगे ना, आज नहीं आए तो ऐसा थोड़ी है। वो कह रहे हैं कि जो है 3 बच्चे हैं, तीन तीन स्टूडेंट हैं इसमें, ओके ओके। क्लास तो लेना ही पड़ेगा। जी जी जी। नहीं नहीं, क्लास तो वो टाइम पे ही चलेगा आपका, क्योंकि जो है वो कुछ वो आपको क्लास तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है सर, मैं 2 बजे फिर ज्वाइन हाँ करता हूँ हाँ मतलब। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। जो नहीं आ रहे हैं वो जो है वीकली मांग लेते हैं कि उनका अटेंडेंस भेजिए, कॉलेज में मांग लेते हैं। और ओके उनका अब्सेंट चला जाएगा। जो जैसे आज क्लास नहीं करे ना, तो उनका उन दोनों का अब्सेंट चला जाएगा। ओके वो कॉलेज वाले मांग ठीक। लेते हैं। वो एक्सेल ओके शीट में मांग लेते हैं कि जो है किसने किसने वो अटेंडेंस जो है वो डेली जो है ना, डेली अटेंडेंस जी। शीट में अटेंडेंस भरना पड़ता है। अब क्लास के बाद मैं ओके ओके। अटेंडेंस शीट में अटेंडेंस भरूंगा, वो डेली कॉलेज में चला जाता है, इसीलिए उसमें वो कुछ हो नहीं सकता है वो। जी ठीक है सर, मैं 2 बजे ज्वाइन करता हूँ क्लास हाँ को।